Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106, or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हिंद किसान चैनल के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर जी। नमस्कार, थैंक यू राजेश। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Government extends deadlines for filing of income tax returns and GST annual returns. Also announces a scheme for interest waiver on different loans. And at the Wall Street, the S&P and Nasdaq rise marginally while the Dow drops as wait for stimulus continues. सरकार ने आयकर रिटर्न और GST वार्षिक रिटर्न जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। कुछ विशेष खातों में ब्याज माफी योजना की घोषणा भी की है और अमेरिका में प्रोत्साहन उपायों की प्रतीक्षा के बीच वॉल स्ट्रीट में S&P और नैस्डैक में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि डाउ में गिरावट दर्ज की गई। To provide more time to taxpayers for furnishing of income tax returns, the central government has extended the deadline for filing returns by individual taxpayers for financial year 2019-20 till the 31st of December this year. Earlier, the tax filing deadline was 30th of November. Ministry of Finance in a statement said the due date of furnishing income tax returns for taxpayers whose accounts are required to be audited has been extended till the 31st of January 2021. Due date for furnishing of income tax returns by the taxpayers who are required to furnish report in respect of international and specified domestic transactions has also been extended to the 31st of January 2021. The date for furnishing of various audit reports, including tax audit report and report in respect of international and specified domestic transactions, has also been extended to the 31st of December 2020. Besides, the due date for payment of self-assessment tax has also been extended to provide relief for the second time to small and middle-class taxpayers. The ministry said the due date for payment of self-assessment tax by taxpayers whose self-assessment tax liability is up to 1 lakh rupees has been extended to the 31st of January 2021. और इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे चर परिचित श्रोता मुजाहिर खान जी हमसे जुड़ चुके हैं। मुजाहिर साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
और सुनने वालों को भी। हरवीर जी, मैं तमाम दुनिया भर के चैनल सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसान बनने को दिल हो रहा है। एक अच्छा किसान बनने के लिए कितनी जमीन की जरूरत होगी? और मैं 69 का हूँ, क्या आप इस लाइन में आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए सर, किसान बनने के लिए कोई जमीन की सीमा तो तय नहीं है। आप जमीन जो है आपके पास होनी चाहिए और आपके राज्य में जो सेलिंग एक्ट है उसके हिसाब से आप जमीन ले सकते हैं और खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई उम्र की सीमा तो नहीं है, ये बशर्ते आपके पास इतने संसाधन हो कि आप जमीन खरीद सकें। इंटेंशन की जरूरत है हरवीर जी, ना? Okay, joining us from Delhi, we have Satish with us. Satish, we welcome you. जी नमस्कार जी। जी, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा सवाल ये सर, पिछले 8-9 महीने से जैसे काफी अनाज फ्री बांटा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी मैंने कल 2020 की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट देखी तो उसमें भारत मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उनकी स्थिति भारत से काफी अच्छी है। तो सर इसका क्या कारण है? क्या मैंने जब इसका थोड़ा अध्ययन करा तो देखा कि भाई जो फायदा गरीबों को मिलना चाहिए ना, वो अभी भी सारा फायदा अमीरों को ही मिलता है। मैं आज जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, लोगों के 10-10 लाख की गाड़ी है, इतने महंगे मकान है, लेकिन फिर भी उनका राशन कार्ड है और वो फ्री मिल रहा है। तो सर ये भेदभाव क्यों है? और दूसरा मेरा सवाल है कि आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि भाई बांग्लादेश की जो जीडीपी है ना, अगले साल पीपीपी वाली भारत को ओवरटेक करेगी, और चाइना जो है ना वो रूस की जीडीपी, वो यूएस की जीडीपी को ओवरटेक करेगा। सर ये बताइएगा, धन्यवाद। देखिए, आपने सही कहा है कि सरकार ने जो कोविड महामारी के चलते बड़े पैमाने पर लोगों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में देने का फैसला किया था, और अप्रैल, मई, जून में ही करीब 12 मिलियन टन दिया गया था, और इसको नवंबर तक एक्सटेंड किया गया था। लगभग 30 से 32 मिलियन टन जो है उसमें इसमें बांटा जाएगा। इससे क्वांटिटी भी काफी है और वैल्यू भी काफी है, क्योंकि हमारे पास इतने स्टॉक्स थे, और एक जो परिस्थिति थी असाधारण महामारी के दौर में, सरकार ने गरीबों को मदद करने के लिए ये कदम उठाया कि देश में कोई भी भूखा न रहे और उसको अनाज मिल सके। जहां तक हंगर रिपोर्ट का सवाल है, उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसमें सिर्फ भोजन नहीं होता, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। बट ये बात सही है कि उसमें हमारा जो नंबर है वो और थोड़ा पीछे है हमारे पड़ोसी देशों से भी, बट इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उसके नॉर्म्स हैं कई सारे, उनको फुलफिल करके उस पैमाने पर उसको आंका जाता है। दूसरे, आपने कहा कि समाज में लोग फ्री ले रहे हैं। देखिए, जो ऐसा तो नहीं है, ये तो जिन लोगों का क्राइटेरिया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसी तरीके के तबके के लोगों को ये दिया जाना था। अगर कोई संपन्न व्यक्ति इसको ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और ये डिस्पैरिटी तो है समाज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरकार सिर्फ अमीरों का फायदा करती है और उसी से ऐसा होता है। आई डोंट बाय दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। और ये जिस मकसद के लिए था, उस मकसद में कोशिश जो है वो काफी कामयाब रही है और गरीबों को मदद पहुंची है, ये इसमें मैं कहना चाहूंगा। जहां तक आपने जीडीपी का सवाल किया कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है, वो अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें ये है कि वो इंडिया से थोड़ा सा उसमें अंतर आया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है और वहां पर ग्रोथ है। लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी छोटी है। हम ये नहीं कहते उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन वो अगले साल फिर हम लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है उससे आगे चली जाएगी, और ये सिलसिला 2024 तक रहेगा। 2024 में बांग्लादेश एज ए कंट्री लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएगा। और जो चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी के बीच अभी फासला है, अभी इतना जल्दी चाइना अमेरिका की इकोनॉमी को टेक ओवर कर ले, मतलब उससे आगे निकल जाएगा, ये अभी मेरे ख्याल से सही आंकड़ा नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज की दूसरी इम्पोर्टेंट खबर। सरकार ने फॉर्म GST-R 9 और GST-R 9A में GST वार्षिक रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ा दी है।
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए फॉर्म GSTR 9C में समाधान विवरण दाखिल करने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म GSTR 9 और GSTR 9A में वार्षिक रिटर्न जमा करना उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक है जिनका कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 9C में समाधान विवरण दाखिल करना भी उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक है जिनका सकल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न और समाधान रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा था। सरकार को ज्ञापन देने वालों का तर्क था कि कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और प्रतिबंधों के चलते देश के अनेक भागों में व्यापार संबंधी सामान्य कामकाज अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है। From Chennai, we are joined by Kashinath. We welcome you, Kashinath. ओके सर, गुड इवनिंग सर। Good evening. Please ask your question. सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई बड़ा आदमी होते हैं, कोई गलत काम से फंस जाते हैं, वो जेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बिहार की लालू जी और यस बैंक होटल में राणा कपूर है, उन लोगों को खाना बाहर से मिलता है या होमली फूड मिलता है, और साधारण कैदी के जैसा व्यवस्था होता है या स्पेशल कुछ रहता है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे तो धन्यवाद जी। This is nothing to do with economic services, but देखिए, जो भी जिसको सजा होती है वो जेल मैनुअल के हिसाब से उसको खाने पीने का उसकी व्यवस्था होती है। स्पेशल केस में अगर कोई कोर्ट कोई डायरेक्शन देता है या कोई हेल्थ इश्यू होता है, वहां पर जरूर कुछ उसमें ढील दी जा सकती है, नहीं तो जो नियम है सबके लिए एक समान नियम है। Okay. Moving on, we are joined in by Kundan from Mumbai. Kundan, we welcome you. Yes, hi. Sir, I would like to know something about like gold. What is the future for gold in coming nearby? Like let's say suppose for first quarter in 2021. Like recently there was very much fluctuation. Like it just crossed around 50,000, 52,000 per So just wanted to know something about what would be the rate in near future for gold. Okay. Actually, देखिए, it is very difficult to assess that what will be the price in the first quarter, but gold already appreciated a lot, and one of the reason was that other investment avenues were not basically giving good return to the investors. But now you see that as economy is improving, so there are people are already going to other avenues also. Market is also giving good opportunity to earn money. At the same time, real estate is also started a little bit picking up. But but we have to see that even deposits are not giving such a good return. So it will depend on the liquidity. But now if you see gold is not giving good return now. If you have not invested 6 months back or 2 years back, so the return will be, because already prices have reached at such a level and consumer demand is not too much. The reason behind this was that because it was supposed to be safe haven for investment, and many countries central bank invested into gold. Even our RBI also invested in gold and bought gold in these days. So it will depend on central banks and the liquidity, the direction of the gold prices. But in my opinion, it has already reached a very high level. Individual investors will not be very interested in coming days to invest in gold for a good return. If you have any queries related to business, economic and stock market matters, we have with us Harveer Singh, Editor-in-Chief, Hind Kisan, and he will answer your queries. You can call us at 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. और इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता तौफीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौफीक नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्ते जी। जी अभी करेंट सिनेरियो में कौन सा सेक्टर बेटर रहेगा अभी इन्वेस्टमेंट के लिए? थैंक यू। देखिए कि एक तो धीरे धीरे जिस तरीके से अनलॉकिंग हुई है इकोनॉमी और डिमांड
सर्ज हो रही है और जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी की वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा पिकअप करेगा। उसमें अगर आप देखें कि एफएमसीजी, क्योंकि लोगों का अभी ये था कि काम धंधा कम था, बट नाउ इट इज कमिंग बैक, लोग काम धंधे में आ रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, जॉब्स आ रहा है, सो देन एफएमसीजी इज ऑल्सो ए गुड सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो जो इनपुट प्रोड्यूसर कंपनीज हैं और जो सेक्टर्स हैं उसमें केमिकल है, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, they are also maybe attractive, and pharma as usual it is there. So मुझे ये थोड़ा सा लगता है, इस तरफ आप विचार कर सकते हैं। इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी भारत में तो कोविड के रुग्ण कम हो रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न में, फॉरेन में सेकंड वेव आने वाली है ये बोलते हैं। ऐसा इंडिया में इसका कितना खतरा हो सकता है? और दूसरा सवाल है कि मार्केट तो इतना ऊपर है, तो ऐसे समय में भारत की आर्थिक परिस्थिति सुधर गई है क्या? तो उसके वजह से मार्केट अच्छा चल रहा है। देखिए, मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि मार्केट जो है वो उसका अभी इकोनॉमी की जो वास्तविक स्थिति से उससे बहुत ज्यादा नाता नहीं है। मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एफपीआई का लिक्विडिटी हमारे मार्केट में आ रहा है। बाहर भी मार्केट्स में लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज हुई है कोविड के चलते, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया दुनिया भर में, उसमें बहुत सारे पैकेजेस दिए गए हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ा पैकेज दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने दिया, जापान ने दिया। तो ये जो पैकेज देने से हमने भी दिया, तो लिक्विडिटी जो बढ़ी है उसमें से काफी बड़ा हिस्सा मार्केट की तरफ आया है और हमारे मार्केट का रिटर्न बेहतर रहा है, इसलिए एफपीआई ने यहाँ पर आया है। ये बात भी है कि इधर जो डोमेस्टिक ये है आपका, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने विड्रॉ किया, रिडेम्पशन हुआ है एक, या प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो एक चीजें हैं उसमें। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और अभी Q2 के रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो नंबर्स पहले से बेहतर आ रहे हैं, पर उतने बेहतर नहीं आ रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर उस तरह नहीं दिखेगा। जैसे आपने कहा कि कोविड, जाहिर सी बात है कि दुनिया इस महामारी से लड़ रही है और अभी तक कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया है। उसके डिफरेंट स्टेजेस में उसके ट्रायल चल रहे हैं। और जो सेकेंड वेव, यूरोप के कुछ कंट्रीज में सेकेंड वेव आया है। हमारे यहाँ भी जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, वो कह रहे हैं कि ये अभी 2-3 महीने हमारे लिए क्रूशियल हैं, जो खासतौर से विंटर के जो अर्ली टाइम है, तो वो काफी क्रूशियल है। तो क्योंकि कुछ हिस्सों में तो कम्युनिटी स्प्रेड है, और लेकिन नंबर ऑफ केसेस का जो ग्रोथ था वो कम हुआ है, नेट नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, बट वही है, अभी तक सब लोग यही कह रहे हैं, सरकारें भी यही कह रहे हैं कि आपको अभी ध्यान रखना है, केयर रखना है, क्योंकि अगर बड़ा वेव आएगा तो लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा हो, लेकिन उससे ज्यादातर देश बच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सावधानी बरती जाए, क्योंकि लॉकडाउन से जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं दुनिया भर में, उस तरफ कोई नहीं जाना चाहता अभी। Sandeep from Delhi joins us now. We welcome you to Market Mantra. Sandeep. सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संदीप नेगी है जी, सवाल पूछे अपना प्लीज। सर, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ सर कि हमारे यहाँ पे जो कृषि का साधन है ना, वो उन्नत नहीं है सर, और जिसकी वजह से लोग हमारे यहाँ पलायन करते हैं। और इसके लिए मतलब संपर्क, किन से संपर्क किया जाए जो अपने कृषि के जैसे अच्छे खाद और अच्छे बीज हमें जहाँ से मिल सके, तो कौन से डिपार्टमेंट है जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं सर? देखिए, ये सब जगह तो प्लान नहीं है कृषि से, और कृषि कुछ हिस्सों में तो बहुत उन्नत है। हम लोग दुनिया के जो सबसे बेहतर उत्पादकता वाले देश हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अच्छी हमारे पास वैरायटीज हैं, अच्छे सीड्स हैं, अच्छा खेती करने का तरीका है। कुछ हिस्सों में जरूर ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पूरी जानकारी नहीं है और लोगों को अभाव है उस तरीके का, बेहतर टेक्नोलॉजी का, बेहतर वैरायटीज का और गाइडेंस का। तो उसमें देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छे
जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपके पास कहीं है वहां आप अप्रोच कर सकते हैं। वहां पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो विकल्प मैंने आपको बताए हैं उनका अगर आप उपयोग करेंगे, और एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज भी हैं। एक तो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो है ICR, उसके डायरेक्टरेट हैं, उसके इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं देश भर में, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपकी क्वेरी हो, जो गाइडेंस चाहिए, उनसे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं जानकारी को। और दिल्ली से हमारे श्रोता जगदीश लाइन पे हैं। जगदीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। नमस्कार जी, जगदीश बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी हेलो, हाँ बताइए आप। जगदीश जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ये नया बैंक है मेरे ख्याल बंधन बैंक, तो ये जो भी पर्सनल लोन देते हैं या बिजनेस के लिए लोन देते हैं, तो ये RBI की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं? इनका कुछ अलग से कोई रूल होता है? इसके बारे में जानना चाह रहा। धन्यवाद। देखिए, बंधन बैंक नया बैंक है, और ये एक NBFC था, और काफी इन्होंने काम किया है लोगों के बीच में। उसके चलते इनको ये बेहतर काम के चलते जो कुछ लोगों को लाइसेंस दिए गए थे, उनमें इनको लाइसेंस मिला है। और बिल्कुल जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं उसी को, क्योंकि उसी से रेगुलेटेड है ये प्रॉपर जो बैंकिंग सिस्टम उन्होंने बनाया, RBI की जो टर्म्स कंडीशन है उसके तहत चलता है, और रेगुलेटर RBI है, सारी गाइडलाइन फुलफिल करता है। सो इट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल बैंक। जो बाकी बैंक बहुत पुराने हैं उन्हीं की तरह से ये भी एक बैंक है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक में और भी बहुत सारे बैंक है, जैसे HDFC है, ICICI है, और कई बैंक है, एक्सिस बैंक है। इट्स लाइक दैट। बट नया बैंक है, छोटा बैंक है कंपैरेटिवली, और उनका काम अच्छा रहा, इसलिए उनको लाइसेंस मिला था बैंकिंग का। और चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए कुछ विशेष ऋण खातों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाली राशि पर 6 महीने के लिए अनुग्रह अनुदान देने की योजना मंजूर की है। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है। इस योजना के तहत ऐसे लोग पात्र होंगे जिनका ऋण खाता स्वीकृत सीमा के दायरे में है और जिसमें अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का बकाया है। योजना का लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, आवास ऋण के क्रेडिट कार्ड बकाये, ऑटोमोबाइल ऋण, उपभोक्ता ऋण और वैयक्तिक ऋण से लेकर व्यावसायिक ऋण तक के लिए लिया जा सकता है, जिनकी कुल देनदारी 2 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। वे अनुग्रह भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे। Harveet, it's a good move by the government for the common man. Yes, actually, you see, government is coming in support of the financially stressed people in the society, and many people who are borrower were there, those who were paying their EMIs timely and even within the COVID. And you see that already there is a government is planning to give this money. What was the moratorium periods, waiver of the interest on interest. So definitely government also wants to boost the sentiment and to support the borrowers. Joining us from Mumbai, we have KD Thakkar. Yes, please, we welcome you. मैं वही पूछना चाहता हूँ, जो असंगठित कामगार के लिए पेंशन बढ़ने वाला था। Sir, I apologize. We just simply cannot understand. Please, due apologies. May I request you to please call up again? Harveet, what do you think of the India achieving sustainability in the field of agriculture? You seem to have mastered this topic. If you could share this point with us. Actually, Rajesh, agriculture is a very important area of our economy. If you see, and despite a large number of small and marginal farmers, we are continuously growing with their limit to the assets and resources. Despite that, we have huge large area which is not irrigated, but
At the same time, we are growing, and you see that our GDP, so agriculture growth in this COVID period, first quarter was 3.2%, and if you go to crop-wise, we are basically at top in worldwide production. Milk, we are producing much higher than any other country in the world. Fruit and vegetable, we are growing more crops than any other country in the world. Fruit grain, I think this year we will export large quantity, maybe more than 10 million ton of food grain we will export this year itself, because farmers are growing, and that's why diversification also played very important role. It's not just crop production, but at the same time dairy, fisheries, poultry, and fruit and vegetable, all these areas are growing and adding the value to the agriculture, because if you are moving from just normal cropping pattern, so you have the better potential to earn more money. So, and government is also identifying the areas. Okay, sorry to butt in. I'm very, very sorry, because we have a caller online. Yeah. We just want to take his call. Mr. Thakkar, we welcome you back. Please go ahead and ask your question. हेलो हेलो हाँ ठक्कर साहब सवाल पूछिए। मेरा ये प्रश्न था, और संगठित कामगार के लिए जो पेंशन चालू होने वाला था, बढ़ने वाला था, उसके बारे में मालूम आपको? हेलो जी जी हरवीर जी, कामगार पेंशन हाँ, उसके लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो जो उसमें आपका जो सम होगा उसके हिसाब से पेंशन आपको मिलेगा, और उसके लिए आपको रजिस्टर करा के एंड जो उसकी एक आपको कंट्रीब्यूशन जो करना है, उस कंट्रीब्यूशन के आधार पे फिर आपका जो पेंशन बनेगा उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। Moving on, the S&P 500 and Nasdaq closed modestly higher, while the Dow ended lower in choppy trading yesterday, with investors keeping a close eye on negotiations on a U.S. stimulus package. The Dow Jones Industrial Average closed 28 points lower, or 0.1% to 28,336. The S&P 500 gained 12 points, or 0.3% to 3,465. And the Nasdaq Composite added 42 points, or 0.4%. to 11,548. For the week, the Dow dropped 0.9%, the S&P 500 fell 0.5%, and the Nasdaq declined 1.1%. U.S. House Speaker Nancy Pelosi said it still was possible to get another round of COVID-19 aid before the November 3 elections, but that it was up to President Donald Trump to act, including talking to reluctant Senator Republicans if he wants to. Trump and Treasury Secretary Steven Mnuchin countered that Pelosi must compromise to get an aid package, saying significant differences remain between the Republican administration and Democrats. How hopeful are you, Harveer, that there will be a stimulus package coming from U.S.? Actually, you see, Rajesh, there is a very tough fight around these elections, and this package is also there. So, as the Republicans are saying that Democrats want to block the package, but they are saying that if you fulfill the norms and the conditions, we will also allow. So, nobody wants to look like to oppose the package, second package, but definitely it will be based on the terms and the politics, the way it is going there. Okay, and what do you, in 15 seconds, what are your expectations from the market in the coming week? Market, I think market will be cautious in coming week, and it is also looking what is happening in the global markets, and results are coming. So, but a lot of positive news is coming comparatively, because worst is over. So it will have a stable market look like that. जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Harveer. And before we close the headlines once again, government extends deadlines for filing of income tax returns and GST annual returns. Also announces a scheme for interest waiver on different loans. And at the Wall Street, the S&P and the Nasdaq rise marginally, while the Dow drops as wait for stimulus continues. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market
Market Mantra.